A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous few classes we were continuously studying the chapter that is index number. So as till today we have already completed the some what is the meaning of the index number, importance of the index number, what are the different methods to measure the index number, Lespier method, Fisher's method, as well as the Paasche method. So in today's class, first of all we will revise all the things as we already discussed in the previous class, and after that we will start the new questions which is related to the index number. Okay, so let's do a one numerical questions or few numerical questions of Lespier method, Paasche method, and the Fisher's method. Okay, so the question is here: from the following data, calculate price index for the year 2008, taking 1997 as base year. Okay, so you have to calculate price index by Lespier's method. Second is Paasche method. Third is Fisher's. Okay, so question is here: commodity 1997 and 2008. Here P0, Q0, P1, Q1. Okay. In the question, all the information is already given. Price of the base year, quantity of the base year, price of the current year, and the quantity of the current year. Okay. A, B, C, and D. A is 20, 50, 40 and 20, and the quantity is 4, 3, 5, 10. P1 is 40, 60, 50, 40. Price quantity is 6, 5, 10 and 20. Okay, now you have to calculate some values. Okay, so first you have to calculate the P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 and P0 Q1. You have to calculate all these values. P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 and P0 Q1. Okay, so you have to calculate. So you have time. I am giving you some time. So you have to calculate all these values P1 and Q0. Multiply all these two. Then P0 Q0 means
this one and this one, multiply both P1 Q1, P1 Q1 this one, and the P0 Q1, P0 and Q1. Multiply all these values. After that I will tell next step. You have to calculate, okay? Then it is very, so it is simple. So you have to only multiply all these values. And P1, P0, Q1, Q0 is already given here. So multiply it. Okay, so let's do P1 Q0. This one, 160, 180, 150, 40 into 10, 400. Right? So P1 Q0 equal to, बताइए क्या होगा, इसको सम करिए. Then P0 and Q0, this one, 20 into 4, 80, 50 into 3, 40 into 5, 200, 20 into 10, 200. Now sum P0, Q0. Next one is P1, Q1. 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 500. Next you have to do P1 Q1. Calculate it. Then P0 Q1. P0 Q1. 120. This one and this one. 150. 400. 400. Okay. Now sum all these values. Sum करिए इनका. P0 Q1. इसको सम करिए क्या आएगा. ये देखिए आपका क्या हो गया 0. Then 19, 1, 4, 5, 6. It will be 250. Sorry. 5 5 ja 25. 4 to 6. 7 8 9. 990 हो गया आपका. नेक्स्ट है आपका क्या 80, 150, 200, 200. ये हो गया आपका 400. और ये 150 प्लस 80 हो गया आपका 230. ये हो गया आपका 630. राइट. नेक्स्ट है आपका, इसको सम करिए. ये हो गया 8, ये 8. कितना हो गया आपका 16, 18, 40. नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका 0, 7, 4 plus 4, 8, 9, 10 and 11. 11. Right? Up you get the value of P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 and P0 Q1. आपको ये value पता चल गई. Now you have to put only the values of these on this method. So whatever the formula of Lespier, Paasche and Fishers, you have to put all these value on this, on that method or the formula. So you get the values of the Lespier price index from the Lespier method, Paasche method and the Fishers method. Okay. So first of all we will do the Lespier method. Lespier method. Okay. So formula is P01 equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. Right? P1 Q0 upon P0 Q0 into 100. तो इसकी वैल्यू क्या है ये आपकी 990 डिवाइडेड बाई
630 इंटू 100। इसको कट करिए, वैल्यू रही इसकी ये हो गया आपका 3 7 जा, ठीक है। ये हो गया आपका 1100/7। तो द वैल्यू क्या आ रही है इसकी 157.14। इसकी क्या वैल्यू आ रही है 157.14। ये आपका क्या हो गया, बाय द लेस्पियर मेथड यू गेट द वैल्यू ऑफ द प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको नेक्स्ट मेथड है पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। P1 Q1 P0 Q1, ओके। तो ये क्या है, P1 Q1 आपकी वैल्यू कितनी आई है 1840 अपॉन P0 Q1 कितना है 1170 इंटू 100। इसकी वैल्यू लाएंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 157 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है 26। तो आपको दो वैल्यू पता चल गई, प्राइस इंडेक्स की वैल्यू पता चल गई बाय द बोथ मेथड, दैट इज लेस्पियर मेथड एंड दी पार्शियल मेथड। थर्ड है आपका थर्ड वन इज फिशर्स मेथड, ठीक है। फिशर्स मेथड का मैंने क्या बताया था कि ये फिशर्स मेथड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, दोनों मेथड का। कौन कौन से मेथड का, लेस्पियर मेथड का एंड दी पार्शियल मेथड का। इन दोनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है ये है, वेट अ मिनट आई विल रब ऑल दीज। So from the both method, Lespier method and Paasche method, we have calculated the value of the price index, and next we are moving to the next method, that is Fisher's method, okay. So Fisher method, as we already told you, that it is the combination of the both. The first one is Lespier and the Paasche method, okay. So I have not rub all these value because from this we have calculated the Fisher's method, price index from the Fisher's method, okay. So third one is Fisher's method, okay. So in the Fisher's method, summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100, राइट। अब आपके पास क्या है, या तो आपको क्या है, आप इन दोनों की वैल्यू रखो ऐसे 990 अपॉन 630 इंटू 1840 अपॉन 1170, ये अंडर रूट है आपका इंटू 100, ठीक है। ये आपको पता चल गया है कि जब ये 100 था तो इसको हम लोगों ने 157.14 कर दिया। अब जब 100 है बाहर है तो हम इसको क्या ले लेंगे 1.57, ठीक है 5714, क्योंकि आगे की वैल्यू तो हम लोग ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1.5726। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम हम लोग ने क्या किया था 100 से मल्टीप्लिकेशन किया था, तब हम लोग क्या लेकर आ रहे थे 157.14। बट अभी 100 ये हम क्या कर रहे हैं, बस इन दोनों का डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, और 100 तो अभी बाहर है, ठीक है, इंटू 100 ये आपका बाहर है, ठीक है। अब इसको हम लोग ने इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ओके। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हम लोग ने क्या किया, फिशर्स मेथड से किया है, जिसमें फिशर्स मेथड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों मेथड का, जिसमें लेस्पियर मेथड एज वेल एज दी
पार्शियल मेथड, तो उनका फॉर्मूला लिखा, इंटू 100 कर दिया, एंड देन 990 आपका क्या है, 990 630, हमने इसकी वैल्यू ले ली जो हम P1 Q0 अपॉन P0 Q0 ले रहे हैं, इंटू आपका P1 Q1 और P0 Q1 लिया, इंटू 100 बाहर आपका है। हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे ये वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट में है। अब हमें पता है कि अभी हमने क्या लिया था, 157.14 लिया था। वो क्यों लिया था, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, बट इसमें अभी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग 1.57 लिख ले रहे हैं और उसको 1.5726। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे इंटू 100, देन 1.5719 इंटू 100, P01 प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द इंडेक्स नंबर, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 157.19। देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बेसिकली पूरे क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं तीनों मेथड से, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो, प्राइस इंडेक्स यूज करो, पार्शियल यूज करो, लेस्पियर यूज करो, फिशर्स यूज करो, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आंसर सेम होगा, बट अप्रोक्सीमेटली पॉइंट का क्या है, वो पॉइंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, बिकॉज कि हम लोग मेथड से लगा रहे हैं तो किसी ने ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं, जैसे इसमें देखिए 4 तक ले रहे हैं, इसमें हम लोग इतना ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, बट अप्रोक्सीमेटली आगे के जो नंबर्स हैं, वैल्यू है, वो तीनों मेथड से क्या होगी, वो सेम ही होगी। वो चाहे हम फिशर्स मेथड यूज़ करें, चाहे हम लेस्पियर मेथड यूज़ करें, और चाहे हम पार्शियल मेथड यूज़ करें। Okay, so let's do one more question of the index number. So compute index number by the Lespier method, partial method and the Fisher's method. Compute index number by Lespier method. I will write in the short form, okay? Lespier method, partial method and the Fisher's method, right? तो अभी यहाँ पे पास है आपके पास commodity, base year and current year, ठीक है। कमोडिटी है MNOP, वैल्यू है आपके पास 5432, या P0 Q0, P1 Q1, 30 15 20 10 6 8 4 4 50 25 30 एंड 20, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, P1 Q0, P0 Q0 और P1 Q1 एंड P0 Q1, ठीक है। ये आपको 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम इधर कैलकुलेट करेंगे लेस्पियर मेथड से, इधर हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल मेथड से, SCHE पार्शियल मेथड से, एंड हियर फिशर्स मेथड से, ठीक है। यहीं पे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है आपके पास P1 Q0, P1 एंड
Q0। P1 Q0, 6 3 जा 18, 180। ये आपका क्या, आप क्या कर रहे हैं आपको पता है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं सिंपली, हम आपके पास बेस ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P1 Q0 कर रहे हैं। P1 Q0 का मतलब है कि P1 प्राइस क्या है आपकी, करंट ईयर की है, और क्वांटिटी किसकी है, बेस ईयर की, उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो गया 80 हो गया, ये हो गया आपका 40। इसको सम करिए कितना हो गया, इसको हम सम करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 300, ये 8 120 420, राइट, ये आपका हो गया 420। अब P0 और Q0 करें, मतलब प्राइस किसकी है, बेस ईयर की है, और क्वांटिटी भी किसकी है, बेस ईयर की। उसको आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है P0 एंड Q0 का। तो ये हो गया आपका 150 60 60 एंड 20, ये 170 ले लीजिए और 120 290। ठीक है, ये आपका 290 आ गया। इसका समेशन, इसको क्या बोल रहे हैं, P0 Q0 बोल रहे हैं, ये समेशन P1 Q0। यहाँ पे हम क्या लेंगे, P1 एंड Q1, मतलब प्राइस किसकी है, करंट ईयर की है, और क्वांटिटी भी किसकी है, करंट ईयर की है। ठीक है, P1 Q1। 0 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, 200। ठीक है, देन 4 3 जा 12, 120, 80। इसको सम करिए, हो गया आपका 500 700। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका P0 मीन्स प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 250, ये हो गया आपका 100, 90, 40। इसको सम करिए, कितना हो गया, 350 एंड 130, 9 10 11 12 13, यस 8 480। ठीक है, अब आपको सेम, आपको पता है इसके आगे का स्टेप क्या करना है। लेस्पियर मेथड के फॉर्मूला है, उस पर वैल्यू को पुट करिए। वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कुछ नहीं करना है, आपके पास वैल्यूज दी हुई है, उसी वैल्यू को क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना है, और क्वेश्चन में पुट करते आपको वैल्यू को पता चल जाएगी, मतलब कि फॉर्मूला से आप जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला होता है P1 Q0 अपॉन P01 मीन्स प्राइस इंडेक्स, P1 Q0 इंटू 100। ठीक है, P01 इक्वल टू P1 Q0 कितना है, 420 290 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए, मतलब बताएंगे कैसे आप लोग, मतलब इसको सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आ रही है, 420 अपॉन 290 इंटू 100। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, 144.83। मतलब अगर हम लोगों ने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया है बाय द लेस्पियर मेथड, वी गेट द वैल्यू 144.83। इससे क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, 144.83 क्या आएगी, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड क्या है, पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू P1 अपॉन Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। देन P01 इक्वल टू P1 अपॉन Q1 कितना है आपका, P1 Q1 है आपका 700, वो है आपका 480 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, इसको कट करिए, कितना आंसर आ रहा है, ये आएगा आपका आंसर 145.83।
145.83, मतलब इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट किया, मतलब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 145.83 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड क्या है, फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड आपको पता है ये किसका है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, लेस्पियर मेथड एंड द पार्शियल मेथड का। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखते हैं 420 अपॉन 290 इंटू 700 अपॉन 480 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ठीक है, ये हो गया आपका 1.4483 इंटू 1.4583 इंटू 100। ठीक है, P01 ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.119 इंटू 100, स्क्वायर रूट करेंगे आपका 1.4583 आएगा इसका स्क्वायर रूट इंटू 100, तो ये आपका टोटल आ गया 145.83। तो इंडेक्स नंबर आपने क्या है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किससे किया है, आपने फिशर्स मेथड से कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 145.83। देखिए, जब भी आंसर आप कैलकुलेट करोगे बाय द लेस्पियर मेथड, पार्शियल मेथड और द फिशर मेथड, whatever the method is there, so the answer will be the approximately the same, जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे आता है अप्रोक्सीमेटली तो समझ जाएगा कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा है, आप सही कर रहे हो, बस जो वैल्यू है वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ही आएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, जिसमें बस क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स बाय द लेस्पियर मेथड, लेस्पियर मेथड से कैलकुलेट करना है। Calculate price index by लेस्पियर मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कमोडिटी 1998 2009, P0 Q0 P1 Q1, A B C D, right, 2 8 10 6 100 200 300 400 3 10 15 10 and 100 50 100 50। तो आपको बस अगर यहाँ पे लेस्पियर मेथड है तो आपको यहाँ पे P1 Q0 एंड P1 Q1 कैलकुलेट करना है, सॉरी लेस्पियर मेथड है ना, तो P0 Q0 कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में जो क्या क्या 1998 2009 दिया है, इसमें P1 Q0 और P0 Q0 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो P1 Q0 करिए, P1 Q0 ये हो गया आपका 300 2000
समेशन P1Q0 हो गया आपका, इसको सम करिए तब तो मैं इसको मल्टीप्लाई, P0Q0 हो गया आपका 200, 8 2 जा 16, 3000, 6 4 जा 24, ये हो गया आपका 10,800, 300, 2000, 45, 4, ठीक है। ये हो गया आपका P0Q0 आ रहा है 7,200। बस सिंपल ये दो वैल्यू आ गए लेस्पियर मेथड से। करेंगे P01 इक्वल टू P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, देन 10,800, 7,200, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, डिवाइड करिए तो आपका आंसर आएगा 147। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर्स डायरेक्टली लिख रही हूँ, यू हैव टू डिवाइड फर्स्ट, ठीक है। आप इसको डिवाइड करिए तो आंसर कितना आएगा 147.3